A very good news for entire Arunachal, the team Arunachal, who had won the first ever blind football championship organized by Indian Blind Football Committee. Are back in town. The championship league, which is held in Karnataka from 24th to 26th of this January. And the team Arunachal had defeated a total of 6 teams in total. Joining with me today are the champions who had just won the trophy international level. Joining with me is Marbom Boji, who is the team captain of this entire team. Marbom जी, आप अब आज ट्रॉफी लेके आए हैं, काफ़ी प्राउड मोमेंट है एंटायर अरुणाचल के लिए. जर्नी तो मेरा बहुत खुल रहा है. ये डोमिनिक निदो, ये जो हम लोग का सार भी है, दोस्त भी है, हर एक साथ मिलके बैठता है. तो उसका साथ में फुटबॉल मैं सोचता नहीं था इतना आगे बढ़ेगा के. मैं फर्स्ट टाइम कर्नाटका स्टेट से नेशनल खेला. तो फिर मेरा दोस्त डोमिनिक निदो ने बोला नहीं, ऐसा करना चाहिए, हम लोग अपना एक अरुणाचल का टीम खोलते हैं ना, अपना एक अरुणाचल का टीम खोलेगा, उसका अरुणाचल का नाम से ही खेलेगा. तो हम लोगों ने प्लेयर ढूंढ के नेशनल 2 बार खेल चुका है, नेशनल 3 बार खेल चुका है अभी. तो मेरा एक चीज़ होता है कि जो ब्लाइंड फुटबॉल और साइटेड जो होता है ना, मेडल भी सेम होता है, हर एक चीज़ इक्विवेलेंट होता है. तो मतलब जो साइटेड को ट्रीट करता है, ऐसे ब्लाइंड को भी करने से ठीक है. क्योंकि अब अभी रिसेंटली वुशु प्लेयर लोग को जो अवार्ड मिला है, उन लोग को भी जो मैंने सुनने में आया कि वो लोग को कुछ दिया गवर्नमेंट ने जो एशियन गेम में. तो एशियन गेम और पैरा एशियन गेम में कोई अंतर नहीं है, बस ओनली है कि जहाँ एशियन गेम होता है वहाँ पैरा एशियन होता है. पैरा एशियन मतलब हम लोग का. तो तुरंतली हम भी अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक पता नहीं है वो ऑन द प्रोसेस है बोलता है, वो सच है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है. इसका बाद में मेरा टीम लोग ने मुझे साथ दिया, इसलिए अचीव कर पाया. इसलिए सब टीम लोगों को भी थैंक यू. अगर टीम लोग नहीं होता तो ये ट्रॉफी भी नहीं होता पाना था. और आज बहुत दिल खुश है. मीडिया लोग, इसका बाद में हम लोग का फैमिली दोस्त लोग, इसका बाद में सार लोग, पैरा ओलंपिक का कमेटी सार लोग आया है. दिल बहुत खुश है. आप लोग इसी तरह हम लोग का साथ देते रहेगा. हम लोग की एक ट्रॉफी ने और ज़्यादा ट्रॉफी लेकेगा, दिल भी खुश होगा. बहुत आज इतना खुशी लग रहा है कि अपना खुशी को मतलब वर्ड से नहीं निकल सक रहा है. We scored a total of 15 goals. So basically, I think one of my co-striker assisted me. He is Talar Podo. He scored against Meghalaya. We won the match by 2-0 then. हम 2-0 से. Well, coming down to summing up my journey for this championship or league, I think playing the whole game, in fact, without any substitution was the toughest part of it. मतलब basically क्या था, हमारा पहला मैच कर्नाटका से हुआ. So it was again, we played it, we won by 5-0. And pretty privileged to be scoring for my team. I scored 4 then. And taking it forward, the next day was with Meghalaya where Talar scored, Talar Podo. And the following day we had 3 matches in, consecutive manner. So वो 3 मैच खेलना उस धूप में, it was pretty tough. And especially playing against Assam was a crazy thing. And in fact, जैसे my coach and my captain and everyone told कि हमने खुद उनको ट्रेन किया और हम पे वो भारी पड़ रहा था. So that was a crazy पलटवार. But yeah, again, scoring was not so easy because of the difference they had, and other teams were also pretty tough enough. So I think I contributed as much as I could. Yeah, and really thankful to the team for giving me the opportunity and trusting me, क्योंकि मुझ पे भरोसा किया उन्होंने, and I hope मैं उनके भरोसे पे खरा उतरा हूँ. But I think, talking about the toughest goal, I think it was with Assam when I scored 1-0. That was the final league match. I thought, actually we maintained this thing called no lose. Yeah. So from the very first match, we continued winning, and I was really scared if we're going to lose one. I wanted to have a clean sheet for my team. So luckily, I scored one against Assam, and we won the league with 15 points, and then qualified for the finals. And yeah.
प्राउड मोमेंट आपका टीम ने चैम्पियनशिप ट्रॉफी लेके आया है नेशनल लेवल में सर. दिस इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव स्टेप इन द पैरालंपिक वर्ल्ड. जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हमारा जो ब्लाइंड फुटबॉल टीम को. तो हमारा समाज में और उन लोग को ऐसे जाना जाता है कि हैंडीकैप है, लेकिन आज अगर वो लोग हैंडीकैप होता, आज इस मेडल को, इस ट्रॉफी को, हमारा स्टेट नाम को वो सारा कंट्री में ऐसे नाम रोशन करके नहीं आता. तो उनको हम लोग अभी जानना है दिव्यांगजन, तो उसको हम लोग डिफरेंटली एबल का तरफ से देखना चाहिए. तो इसलिए वो लोग बहुत मेहनत किया. एक स्पोर्ट जर्नी जो इस तरह से मेडल लेके आना, ये एक शॉर्टकट नहीं है. ये बहुत 3-4 साल का बाद वो लोग ने इस मेडल को आज हम लोग देखने मिल रहा है. अबाउट दिस मैच अगर हम बात करें तो द प्लेयर्स वे सेइंग कि देयर वाज अ लैक ऑफ फंड, जो वो लोग का ट्रैवल एक्सपेंसेस और एंड देन जो लोग जर्सी भी पहने थे तो उसमें वो लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रहा था. जी अभी हम लोग प्रूव कर रहा है, दे हैव प्रूव आस नाउ, एंड वो हम लोग भी स्टेट को ये अभी संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ कमियां है. आप लोग भी खुद मालूम है कमियां सिर्फ ये ब्लाइंड फुटबॉल को सिर्फ बोल के नहीं है, हमारा सब स्पोर्ट को थोड़ा कमियां है पैरा ओलंपिक बोलने से. अभी हम लोग रिसेंटली नेशनल इवेंट में भी गोवा में जाके आया, हम अपना से जाके आया. और अभी फंड का बारे बोलने से तो 3-4 साल से हम लोग का फाइल रीइंबर्समेंट फाइल जो पेंडिंग है, आप लोग स्पोर्ट अथॉरिटी और नचल में जाके पूछ सकते हैं, वहाँ में फाइल पेंडिंग है. रिसेंटली हम लोग स्टेट गेम भी कराया, नेशनल गेम में भी जाके आया, और इंटरनेशनल इवेंट में भी हम लोग जो पार्टिसिपेट किया वाला रीइंबर्समेंट सबमिट करके रखा हुआ है. गवर्नमेंट का तरफ से हम उम्मीद करता है हमारा सरकार जो ज़रूर हम लोग को रीइंबर्स कर देंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ है. तो उसके लिए हम लोग ये ब्लाइंड फुटबॉल ये प्लेयर लोग को भी हम इनकरेजमेंट दे रहा है. ज़रूर थोड़ा हम लोग को दिक्कत जरूर का फर्स्ट टाइम में, इसलिए हम लोग को तकलीफ हो रहा है. अभी हमारा पॉलिसी भी बन रहा है, तो पॉलिसी बन जाएगा तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा तो अच्छा लगेगा. आपने कहा आप लोग का फाइल प्रोसेस में है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, कितने समय से प्रोसेस है कुछ? जी अभी तो हमारा पिताजी है, सरकार हमारा ये बॉस है, उसको हम कैसे अगेंस्ट बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट का. पैरा ओलंपिक जो सब अभी विजुअल इम्पेयर ये लोग ब्लाइंड फुटबॉल बोल के नहीं है, सब अलग अलग स्पोर्ट ओलंपिक में जितना स्पोर्ट इवेंट है 28 स्पोर्ट डिसिप्लिन सबको हम देख रहे हैं. लेकिन उसमें हम लोग को इस बार थोड़ा पांच रख दिया है CM सर जो आपका बजट अनाउंसमेंट में. तो कोशिश करेगा उसको हम लोग एक अच्छा से स्टेट इवेंट, बड़ा सा इवेंट कराने का हम कोशिश करेगा. और जहाँ ज़रूरत है आने वाला दिन में जो अभी नेशनल चैम्पियनशिप बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, बोसिया ये सब हो रहा है, ये उसमें हम लोग अगर पंथ हम लोग को रिलीज़ कर देता है उसमें भी हम लोग थोड़ा मदद करेगा. और अभी ये लोग जो अभी जाके आए उनको हम वो लोग का रीइंबर्समेंट टिकट को लेके हम सरकार को सबमिट कर देंगे. और सरकार को रिक्वेस्ट करता है उनको थोड़ा हमारा एबल बॉडी को जैसे देखता है हमारा डिसेबिलिटीज स्पोर्ट को भी थोड़ा पान को देख देने से अच्छा है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं. अब मामा नातुंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर है तो उसके लिए कुछ संदेश है, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने जब पैरालंपिक इशू के ऊपर में सवाल उठाया था तो ही वाज हमारा रास्ता डोर इज ऑलवेज ओपन. पैरालंपिक के लिए ही इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन विद अदर स्पोर्ट्स कंपेयर टू पैरालंपिक्स, उसने ये कहा था. जी मामा नतुंग सर तो वो ऐसे ही बोलते रहता है, हम लोग कभी भी उसको मिलने से अच्छा तो बोलता है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आया है. अभी ये गया साल भी हम लोग आपका नॉर्थ ईस्ट लेवल का यहाँ ब्लाइंड फुटबॉल स्टेट लेवल में उसको हम लोग चीफ गेस्ट भी बुलाया था, लेकिन नहीं आया है. उसका बाद हम लोग इवेंट कराने का बाद हम लोग रीइंबर्समेंट के लिए भी 22 लाख अभी अपने खुद ही ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन बताया है, वो हम लोग को नहीं दिया है अभी तक, ऐसे फाइल पड़ा हुआ है. और अब तक तो हम लोग को ऐसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन CM का तरफ से तो पूरा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है. स्पोर्ट मिनिस्टर का तरफ से हम लोग को पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है ना, टू बी फ्रैंक, क्योंकि हम लोग या मीडिया में अच्छा उनको बोलता है और रियलिटी में होता नहीं, तो हम क्या बोलेगा ना. तो आने वाला दिन में अच्छा होगा शायद. कुछ संदेश देना चाहेंगे मामा नातुंग से? जी वो स्पोर्ट मिनिस्टर को हम वही रिक्वेस्ट करता है कि देखिए आप हम लोग भी कुछ कमियां हो कि आपका घर में भी कोई आपका घर में नहीं होने से भी कोई रिलेटिव्स होता होगा, आपका अगल बगल में कोई रहता होगा एक डिसेबिलिटीज बच्चा, कितना तकलीफ होता है उनको. हर पेरेंट उसको गाइडेंस करता है, हर अभी खेल कूद में जाता है तो एबल बॉडी लोग दौड़ के निकाल के खेल जाता है, जर्सी पहन के, जूता पहन के. हम लोग को व्हील चेयर ज़रूरी होता है, हम लोग को एक स्कोच ज़रूरी होता है, टॉयलेट बाथरूम के लिए ज़रूरत होता है.
तो एक जहाँ एबल बॉडी लोग उसमें 100 रुपया खर्चा करने का जगह हम लोग को 500 ज़रूरी होता है। जहाँ उसमें एक आदमी जाके खेल सकता है उसमें हम लोग को 2-2, 3-3 आदमी ज़रूरी होता है, इसको ज़रूरी होता है। इसलिए कुछ आपका स्पोर्ट मिनिस्टर को हम ये संदेश करते हैं कि आपका टेन्योर में कम से कम पॉलिसी हम लोग 11 साल से 2021 से पॉलिसी के लिए पायल को हम लोग घुमाते रह। आपको हम लोग कभी पर्सनली जाके हमको मदद करो, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन को मदद करो, हम कभी नहीं बोला है। हमने कितना भी आपको बात किया है फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिव्यांगजन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द स्टेट। कभी हम अपना के लिए अब खुद ही सुन, अभी अब मालूम होगा, हम कभी आपको पर्सनल जाके ये दो हो तो कभी नहीं बोला है। और हम लोग जानने से भी हम ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्पोर्ट पैटर्निटीज के लिए गया, दिव्यांगजन के लिए, क्योंकि ये लोग भी एक कुछ कमियाँ हो के भी खेलना चाहता है। ये लोग भी दुनिया जीना चाहता है, ये लोग का भी हक है, उन लोग का भी पॉलिसी होना चाहिए। और लेकिन आपका टेन्योर में अगर नहीं कर सकेगा तो अभी हम क्या बोलेगा, और आने वाला टेन्योर में जरूर होगा, हम उम्मीद करते हैं। भारत माता की जय। बस, थैंक यू। घूमता ला गाड़ी घुमा 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 घुमा, घूमता ला गाड़ी घुमा 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 घुमा, घूमता ला गाड़ी घुमा 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 घुमा।